Good morning, students. Today we are going to start a new lesson number 1.3, Autobiography of a Great Indian Bastard. Okay, this is the autobiography, मतलब आत्मकथा, अपने बारे में बताना. That is called autobiography. आप अपने बारे में कुछ बताते हो ना, मैंने ऐसे किया, वो आई डिड दैट ऑल, वॉट एवर योर अचीवमेंट, अपने लाइफ में क्या किया, आप व्हेन यू आर बॉर्न, हु आर देयर इन योर फैमिलीज, जब आप अपने बारे में बता रहे हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी. तो दिस इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड. तो ये एक आत्मकथा है जो एक बर्ड अपने बारे में बता रहा है, और उसका नाम है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड. सी विच इज़ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? वेल friends, it's me, the Great Indian Bastard. I feel proud to be known as the Great Indian Bastard. I have more than 30 different names in various Indian languages. See what it is mentioned in this paragraph. Which is the heaviest flying bird? Heaviest मतलब वजनदार, बड़ा, विशाल. एक बर्ड ऐसा है जो बहुत बड़ा है. तो दे आर आस्किंग कौन सा heaviest flying bird इंडिया का है. इट्स मी. नाउ व्हाट द बर्ड इज सेइंग, इट्स मी, मैं हूँ, मेरा नाम है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड. आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड. तो वो क्या बोलता है, आई एम वेरी प्राउड, मतलब मुझे अपने पर गर्व है, घमंड है कि मैं एक ग्रेट इंडियन बास्टर्ड हूँ. आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस. दिस ग्रेट इंडियन बास्टर्ड को 30 अलग अलग नामों से जाना जाता है ओवरऑल इन इंडिया. इंडिया में हर एक जगह से एक एक नाम रखा गया, तो 30 नामों से वो जाना जाता है. लेट्स सी व्हाट इट इज. इन मराठी आई एम नोन एज मालडोक. मराठी में मालडोक बोलते हैं इस बर्ड को. और मालडोक या हूम. आई कैन वे अप टू 18 kilos एंड कैन स्टैंड अप टू 4 feet इन हाइट, रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर. See what is the height and the weight of this bird? The weight of the bird is 18 kg, 18 kilo, and can stand up to 4 feet in height. See the height. If it stand ना, अगर वो इस तरह खड़े रहते तो it will reach to 4 feet. इतनी तो आपकी ऊंचाई probably might be or may not be. कुछ लोग हो सकते, कुछ लोग नहीं हो सकते 4 feet height के in your class or in your standard, in 6th standard. So what it is saying, weight is up to 18 kilos, and when it stands like this, see over, when it stands like this, it is 4 feet high. That might be up to your neck or your shoulders. See here. I have a long neck, white neck, brown wings, tall yellow legs, and a black cap on my head. See how it looks? It has a long neck. See in this picture they are showing, it has a very long white neck, brown wings, the wings are brown, tall yellow legs, the legs are yellow in color, and black cap. See over the head, this looking like that is wearing a black cap. So what is the appearance? It has a long white neck, it has brown wings, yellow legs, and a cap over its head. My wife, Mrs. Bastard, is smaller and slimmer than I am, and her neck is not wide. But I have heard humans say that we both look impressive. Now the female bastard is not taller as this male bastard. Okay, this bird. यानी इसका फीमेल जो है वो इतनी ऊंचा नहीं है जितना मेल ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है. उसका हाइट छोटा है उसका फीमेल का. एंड इट इज स्लिमर ऑल्सो, वो उससे दुबला भी है. एंड हर नेक इज नॉट वाइड. द नेक ऑफ दैट फीमेल बर्ड इज नॉट वाइड, वेयर एज द मेल इज, इट हैज़ ए वाइट नेक. बट what is it? But I have heard humans say that we both look impressive. पर वो दोनों ही दिखने में बहुत ही इम्प्रेसिव, अच्छे दिखते हैं. I live in grassland and desert along with my other friends including chinkara, blackbuck and larks.
See where they stay. These birds stay in the grassland or the desert area. With other birds, their names are chinkara, blackbird, and larks. So it is saying that it has friends called name chinkara, blackbird, and larks, and they stay in the grassland or in the desert area. I eat everything including snakes. See there what the diet is, what they eat. They eat snakes, lizard, small fruits and berries, and all sorts of insects. So what they have like to eat, snakes they like to eat, lizards, small fruits and berries, and all sorts of insects. You might be knowing, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, बर्ड्स लोग ये सब चीज़ें खाते, स्नैक्स खाते, लिजर्ड्स खाते. तो इनका डाइट, फेवरेट डाइट खाना यही है. इंसेक्ट्स है, बाकी के बेरीज वगैरह खाते हैं जंगल में जो उगते हैं, इवन और स्मॉल फ्रूट्स, फिर लिजर्ड एंड स्नेक्स. When it starts raining, we all gather at our favorite grassland where there are no people to disturb us. I perform a wonderful dance by gulping air in the special feather pouch attached below my neck. So what this Great Indian Bastard is saying, we all gather at our favorite grassland. They all gather during the rainy season in grassland. Their favorite grassland is there. There they all gather during the rainy season. Where there are no people, means there are no people. Human beings don't stay there. दे लिव एलोन, मतलब उनका बर्ड्स का एक अलग सा एक जगह रहता है जहाँ पे लोगों का आना जाना कम रहता है या आते जाते नहीं हैं. सो ह्यूमन बींग्स आर नॉट देयर टू डिस्टर्ब दिस बर्ड्स. सो दे एन्जॉय ड्यूरिंग दैट पीरियड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. They perform wonderful dance. What they saying? What the bird is saying? They perform wonderful dance by gulping air. Okay, मतलब आवाज़ ये कुछ भी चीज़ हम लोग ये करते निगलते हैं, वाटर है, खाने का चीज़ ऐसे निगलते हैं. व्हाट यू से ग्लपिंग बोलते हैं कि सैलोइंग, उसको सैलो करना बोलते हैं. तो हवा को अंदर लेते हुए इन द स्पेशल फेदरी पाउच, हवा को इस तरह से टेक द हेयर इनसाइड देयर पाउच. देयर इज अ पाउच ओवर देयर एंड दे मेक डिफरेंट साउंड्स. दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस एन resounding sound similar to the one produced by the cow. मतलब एक काऊ की तरह एक आवाज़ निकालते हैं. वो हवा को अंदर ले लेते हैं और एक पॉकेट जैसा रहता है, पाउच जैसा रहता है, जहाँ से वहाँ से एक आवाज़ निकाल आते हैं. जब वो एक आवाज़ कुछ बोलने का या ये करने की आवाज़ निकालते हैं उससे हवा के दौरान. दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस resonating sounds similar to the one produced by the cow, and that pouch which is attached to their neck, below their neck, that helps to create a sound. I dance in the joy and puffed out the feathers and cocked up tail and dropped down wings. It helps me to impress my soulmate. It started to dance with making such sounds. आवाज़ें निकाल के, मुंह से आवाज़ें निकाल के डांस करता है, अपना फेदर्स को फैला के वगैरह अपने पूछ के करता. सी दिस पिक्चर इज शोन हियर. इट मेक साउंड इस तरह एंजॉय ये करता है और अपने फीमेल मेट को रिझाने की कोशिश करता है, इम्प्रेस करने के, फीमेल बर्ड को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है इस तरह आवाज़ें निकाल के या इस तरह डांस करके. यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड आवर यंग ones hatch out of the eggs. Mother GIB means Great Indian Bastard lays just one egg directly on the ground. We don't believe in building nest. So this what they are saying about themselves. The birds, female birds lay eggs and our young ones come out of the eggs. सबको पता है, everybody knows that birds lay eggs. So these birds also lay their eggs and they directly drop their eggs on the ground. बाकी के बर्ड्स को आपने नोटिस किया होगा, दे मेक अ नेस्ट एंड दे पुट देयर एग्स इन दैट नेस्ट. बट दिस बर्ड्स डोंट मेक देयर नेस्ट. वो सीधा दे ड्रॉप देयर एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. अपने अंडे को सीधा ज़मीन पे वो डालते हैं, नेस्ट वगैरह नहीं करते. बिकॉज दे आर ह्यूज बर्ड्स
प्रेफरली वो रहते हैं लैंड में ही, ज़मीन पे ही रहते हैं, घूमते, तो नेस्ट वगैरह नहीं बनाते. वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट. व्हाट इट इज सेइंग, वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट. हमें नेस्ट बनाना ज़रूरी नहीं लगता, सो वी डोंट बिल्ड नेस्ट. वी हैव स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम द प्रीडेटर्स. तो व्हाट दे सेइंग, दे हैव ए स्पेशल ट्रिक्स टू प्रोटेक्ट देयर एग. अपने अंडों को बचाते हैं. आप लोगों को भी अच्छे तरह से पता होगा, मुर्गियाँ या बाकी बर्ड्स दे कम एंड सिट ऑन देयर एग्स. दैट इज़ टू, उसको ये करने के लिए भी, हैच करने के लिए भी होता है, इवन ऑल्सो फॉर प्रोटेक्टिंग दैट एग्स. तो दिस ग्रेट इंडियन बास्टर्ड हैज़ द ट्रिक. The egg looks like a stone. The egg of the great Indian bastard look like a stone. मतलब जो अंडे वो रखते हैं वो दिखने के लिए पत्थर की तरह दिखता है. तो इसके लिए बहुत लोग मिसलीड हो जाते हैं, मतलब एक पत्थर समझ के उसको अनदेखा करते हैं, इसीलिए वो अंडा बच जाता है. So their eggs looks like a stone. Monitor lizard, foxes, dogs, pigs, snakes and eagles are the enemy of my egg and chicks. So who are the enemies? देखो, मॉनिटर लिजर्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स, ये क्या है, उसके एनिमीज है जो अंडे को खा जाते हैं या उसके बच्चों को खा जाते हैं. बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ दम. बट व्हाट द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड इज सेइंग, दैट फीमेल जो है, जो माँ जो है, वो अपने बच्चे की रक्षा करती है, हर दुश्मनों से लड़ती है, तो अपने आप अंडों को वो बचा के रखती है दुश्मनों से. बाय द टाइम आवर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग, रेन अराइव्स. तो जब बच्चे अंडों से बाहर आने के वक्त होता है, तब क्या होता है, रेनी सीजन्स आ जाते हैं या रेन अराइव्स. देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्रास, स्वार्मिंग इनटू इंसेक्ट्स, फ्रेश फूड फॉर माय फैमिली. तो यू नो इट वेरी वेल, रेनी सीजन में बहुत सारे कीड़े मकोड़े बाहर आने लगते हैं ज़मीन से. आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे ये सब चीज़ें. बारिश के टाइम को ज़्यादा कीड़े वगैरह बाहर आते, तो ये एक अच्छा डाइट होता है इन यंग वंस के लिए. ये जो बच्चे बाहर आए रहते हैं उनके लिए एक अच्छे सा डाइट होता है कि वहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिलते हैं खाने के लिए. यंग वंस ऑफ द अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, बट अ ग्रेट इंडियन बास्टर्ड मदर एंड द चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 year. तो what the other birds do, बाकी जो birds है, what the young birds do, as soon as their wings become stronger to fly, they just fly away from their nest. पर ये जो है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ये जो बर्ड्स है, बच्चे हैं, वो अपने माँ के साथ, पेरेंट्स के साथ 1 साल लगातार साथ में रहते हैं. जबकि बाकी के बर्ड्स क्या है, उनके पंख जब मजबूत हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते, तो वो अपने इससे घरौंदे से या इससे नेस्ट से भाग उड़ जाते. पर ये बर्ड्स क्या है, अपने माँ के साथ, पेरेंट्स के साथ 1 साल साथ में ही बिताते हैं. द चिक लर्न्स मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर. तो नेचुरली द चिक्स लर्न, जैसे हम ह्यूमन बींग्स अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, माँ बहुत कुछ सिखाती है, वैसे दिस चिक्स ऑल्सो लर्न्स मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर. You may have heard about the great human friends of ours, Dr. Salim. Okay, now here I am stopping this. Please go through this lesson. आपका नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगी. So which is the highest flying bird in India? The greatest Indian bastard. But अभी ये सब बर्ड्स नज़र नहीं आ रहे, या वीकेंड वो एक्सटेंट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, या प्रोबेबली सब हो चुके हैं. वी विल कम टू नो इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट लेसन में हमें समझ में आएगा. तो इट इज़ बीन कॉल्ड बाय 30 डिफरेंट नेम्स. 30 नामों से जाना जाता है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड थ्रू आउट द इंडिया. तो इन मराठी इट इज़ कॉल्ड एज स्मार्डोक और हूम. उसकी वज़न जो है इट इज़ 18 kg एंड व्हेन इट स्टैंड्स अप इट इज़ 4 feet हाई. जब वो खड़ा रहता है अपने पैरों पे तो 4 feet ऊंचाई का उसका कद होता है. सी इस अपीयरेंस कैसा दिखाई देता है. द मेल ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एज अ लॉन्ग वाइट नेक, ब्राउन विंग्स, टॉल येलो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप. सी हो या वाइट नेक, white and long neck, brown wings, yellow legs and a cap over the head.
and the female is smaller than the male ग्रेट इंडियन बास्टर्ड. उसका साइज छोटा है कंपेयर टू मेल के लिए, और उसके गर्दन भी वाइट नहीं है, बट बोथ ऑफ दम लुक इम्प्रेसिव या अच्छे दिखते हैं. देयर फेवरेट फूड आइटम, सी और या फूड जो खाना पसंद करते हैं, व्हाट दे हैव, they live in the grassland, okay, and the desert. They live in grassland or desert, and they're good. What they eat is that snakes, lizards, small fruits, berries, and all other sorts of insects. That is their food, okay. And it lives with their friends called chinkara, blackbird, and larks. That their very healthy habit is the grasshoppers and the beetles are the favorite food. ग्रासहोपर यू माइट हैव सीन, सी देखिए ऐसा ग्रासहोपर होता है ग्रीन कलर में जो पेट पत्तों के बीच में होता है. तो ये और बीटल्स, जो बड़े बड़े बीटल्स होते हैं, इसे मोटे मोटे होते हैं बारिश के सीज़न में माइट से, तो ये सब चीज़ें उसके फेवरेट फूड में आता है. और बाकी वो स्नेक्स, लिजर्ड और स्मॉल फ्रूट्स और बेरीज भी खाते हैं. इट डांस ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अपने फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए वो वहाँ पे बारिश के सीज़न के वक्त क्या करता है, अपना पंख थोड़ा फैला के वगैरह आवाज़ें निकालता है. सी ओवर हियर, मुँह से आवाज़ अंदर लेके इट गल्प्स द हेयर एंड मेक अ साउंड, एक अलग से साउंड करके अपने गर्ल्स में उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है. देन इट इज़ दैट उसके एग्स जो है थे, द हैग विच द फीमेल लेस, वो क्या है, दिखने को स्टोन की तरह दिखाई देता है. तो वो लोग डायरेक्टली ड्रॉप करते हैं ग्राउंड में. दे ले देयर एग्स डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड एंड इट इज़ लुक्स लाइक अ स्टोन, यहाँ पे मेंशन किया है. एंड द एनिमीज, सी द एनिमीज, मॉनिटर, लिजर्ड, फॉक्स, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर द एनिमीज ऑफ द एग, मीन्स दे ईट दिस एग्स, बट द मदर आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड द यंग वंस. तो और वो जो छोटे बच्चे यज्ञ से जब बाहर आते, 1 साल तक अपने माँ के साथ वो लोग वहीं पे वक्त गुजारते हैं, या बहुत कुछ वो 1 साल में अपने माँ से सीख लेते. सो दिस इज़ व्हाट रिमेनिंग पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.